ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਬੇਲੀਆ, ਖੋਰੇ ਬਚੀਏ ਕਿ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲਾ ਏ। ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਏ। ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਏ? ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੋਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਹਿ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? ਖੋਰੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਭਲਾ? ਤੂੰ ਭੁੱਲਾ ਹੈ ਪੰਡੋਕੇ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮਰੀਦ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਪਦਾ? ਆਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਇਆ? ਆਹੋ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ। ਜੇ ਤਾਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ ਉਹ ਤਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 10-10 ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਢੋਣਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾੜਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 10-10 ਘਰ ਸਾੜ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ। ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਸਾੜ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਜੱਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਬੇਬਸ ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੁੱਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਚੱਲ ਬੁਲਿਆ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਤਸਬੀਹ ਬਹੁਤੀ ਫੇਰ ਨਾ ਬਾਹੂ, ਇਸ ਤਸਬੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਨਾ ਹੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੂ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਇਲਮ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਜਾ ਵੜਦੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਬੁਲਿਆ ਚੱਲ ਬੁਲਿਆ।
सलाम बाजी जी। अरे हाँ पहलवान भाई, क्या हाल है? वो पहले तो बहुत चंगा है जी, जूना तैयार है जी। हैं? किस काम के लिए? अच्छा, ते फिर हुन की हुक्म है ओदले? एक बात है पहलवान भाई, बिल्लू चल जा, दफा हो जा, तेरी माँ तुझे इंतजार करी होगी। एवी में एकला पर्चा न करते। हाँ पर्चा कौन कटा सकता है बाजी जी, साढ़े ओन नियम। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा, तुसी मजाक भी कर दिया जी। हाँ जी पहलवान भाई, मैं भी इंसान हूँ कि मशीन नहीं। और- लोगों की खिदमत करने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान इंसान ही नहीं रहता। ओ नहीं जी, मेरा ये मतलब नहीं सी जी। पता है मुझे, चल छोड़ो इस बात को। हाँ, तो हम एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। टीवी, रेडियो, सिनेमा, अखबार, पोस्टर, हर तरीके पे ये मुहिम चलाई जाएगी। जो जी, फिर जी। तो इस मुहिम के मरकजी किरदार के लिए मैंने जीरे का नाम प्रपोज किया है। जी, जीरे दा, अपने जीरे दा। हाँ जी, नज़ीर अहमद जुल्फ़तराश। चंद हफ्तों में जीरा मुल्क का सबसे मशहूर नायक बन जाएगा। गली गली में उसकी तस्वीरें लगी हुई होंगी। रेडियो पर फरमाइशी गानों से पहले उसकी इंटरव्यूएं चलेंगी। और तो और टीवी की खसूसी नगमों में भी उसकी तस्वीरें नजर आएंगी। पर उदा कसूर की है जी? मेरा मतलब है कि उन्हें ऐसा केड़ा काम कीता है जेड़ा मैं नहीं कीता। है काम। सेहत वाला कमी है मेरे विच। अरे नहीं, फिर कैसे वाला? मैं तो उसको वादा जी। खानदान वाला जितना भी कमाले को वारिस बच्चे ही रहेगा। अक्ल वाला तो फिर दोनों ही पैदल है जी। ये भी ठीक है। तो फिर जी तुझसे 8 बच्चे आ गए हैं पहलवान भाई। 8 बच्चे? हाँ, उसका खानदान बहुत बड़ा है और तुम ठहरे बिल्कुल अकेले। मैं समझा नहीं बाजी जी। मेरे जहन पे ज्यादा जोर पड़े तो मैंने दंदल पे जा लिए पहले न पाओ। ओए नहीं पहलवान भाई, हम बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जो मर्द काफ़ी बच्चे पैदा कर चुके हैं, हम उन्हें नसबंदी का मशवरा दे रहे हैं। और इस काम के लिए जीरे से बेहतर पैदावार कौन हो सकता है? इसके 8 बच्चे हैं। ताड़ा मतलब है कि जीरा। मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया पहलवान? मेरा ये मतलब नहीं था जी। हमें एक जीरे जैसे बंदे की तलाश है जो कैमरे के सामने आकर ये करे कि इतने बच्चे पैदा करने के बाद वो इस नतीजे पर आ पहुंचा कि हमें नसबंदी करनी चाहिए। क्या ख्याल है पहलवान भाई? आइडिया तैयार है बाजी जी, मगर एक मसला है जी। जीरा ते नजरियाती तौर ते कट्टर औलादी है जी। नालाए मोहल्ले विच ओदा ते मजाक ही बन जाएगा जी। अगे ही गुरीमा दा रिकॉर्ड लगदा रहंदा है। इस ऑपरेशन के साथ बंदे पर कोई असर नहीं पड़ता। और ये ख्याल कि अगर उसके बच्चे पैदा नहीं हो सकते तो उसकी मर्दानगी पर हुर्फ आ जाएगा ना, ये सब जहालत की बात है। पर ई गल जीरे दी समझ विच मुश्किल ना लाएगी बाजी जी। तो सारे मुल्क में शोहरत मिलेगी और साथ साथ मकबूल मुआवजा भी मिलेगा। मुआवजा भी मिलेगा जी? हाँ जी, शोहरत भी और रकम भी, और कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो खैर होएगा जी। तो आप उसको समझाने की कोशिश करो ना। बड़ा मुश्किल है बाजी जी। उसको राजी करना बहुत ज़रूरी है।
ये मेरी इज्जत और मेरी नौकरी का सवाल है। अच्छा जी। अगर ये कैंपेन कामयाब हो गया तो मेरी तरक्की हो जाएगी, और अगर ये फेल हुआ तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। ना ना नाना जी, इस तरह ना कर बाजी जी। मेरे छोटे बहन भाइयों को मेरी नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है और मुझे ये काम बहुत पसंद है। तुझे परेशान ना हो बाजी जी। महजुद्दीन, मेरा नाम महजुद्दीन है जी माजिबीन जी। और तुम्हें ये मेरे लिए करना पड़ेगा, भाड़े नहीं। और मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। अच्छा तो फिर मैं कोशिश करना जी। कोई कोशिश नहीं, उसको राजी करके क्लिनिक लाना है, और वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। 2 दिन के अंदर अंदर? हाँ ना, 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उसने इंटरव्यू देना है। हाँ जी माजिबीन जी, मेरा नाम वजूद है, पहलवान अब्दुल वजूद। बहुत अच्छा नाम है। शुक्रिया जी। हो जा दफा ओ शैताना। बक बक ना कर बेमाना। करे क्यों कीता ठिकाना, तेनू इथों पवेगा जाना। नहीं हो मन्ना तेरा मैं कहना, मेरी मर्जी जिथे मैं रहना। वे मैं आमिर अली शाना। ओए मैं जिना दा प्रधान आ। ओए गोडे तेरे मैं पन्ना। ओए पुट्ठा तेनू मैं टंगा। तेवा तेनू मैं ठिब्बी। सट मारा तेनू मैं कुची। तू चाहना की ओ जिन्ना, तू देवेगा मैनू किन्ना। कैर तो रब दे डर ओए। जिथों निकले आए उथे ही वड़ ओए। चुप हो जा बदज़बाना। झूठे फरेबी इंसाना। तू जिन है बहुत डाडा। ते फिर हुन की इरादा? बस बादशाह बेगम, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। कैसी हो रोशन आरा? बहुत अच्छी, बहुत मुतमईन, बहुत खुश। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। लाल किले का जिनान खाना, राहदारियां, नौकर चाकर, कनीजें, गुलाम, ख्वाजा सरा, सब पर तुम्हारा हुक्म चलता है। बादशाह तुम्हारे हुक्म के बगैर एक कदम नहीं उठाते। मुशीर और वजीर सब तुम्हारी खुशनुदी के मुंतजिर हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूं, मगर इसलिए नहीं कि मेरे पास तुम्हारे अंदाजों से ज्यादा दौलत और ताकत है, बल्कि इसलिए कि मैंने और बरादर औरंगजेब ने बरसों की नाइंसाफियों और मुसलसल तौहीन का बदला ले लिया। औरंगजेब को उसका हक मिल गया और मुझे मेरा मर्तबा। और तुम्हारा भाई मुराद जो गवालियार में पोस्त के जहरीले प्यालों का शिकार बन चुका है, और तुम्हारा दूसरा भाई शुजा जो अराकान के जंगलों में भटक रहा है, या किसी जंगली कबाइल या वहशी दरिंदे के हाथों अपनी जान हार बैठा है, और तुम्हारा तीसरा भाई वली अहद सल्तनत कैद में मौत की घड़ियां गिन रहा है। हाँ हाँ, मैं तब भी खुश हूं। हकदारों को उनका हक मिल गया और सजावारों को सजा। मुराद बेवकूफ था जिसने ये ख्याल किया कि जिस तख्त के हुसूल के लिए औरंगजेब ने साल हाँ साल तकलीफें झेली, जंगें लड़ी, उसे वो मुराद की खिदमत में पेश कर देगा। शुजा, बिद्दती भी और हरीस भी। उसने इस्लाम का सीधा रास्ता छोड़कर अकलियती फिरके की नजरियात अपना लिए और उसकी सजा पाई। और दारा, तुम्हारा दारा तो बागी था, दीन का भी और दुनिया का भी। वो कतल इस काबिल ना था कि उसके सर पे सल्तनत मुगलिया का ताज रखा जाए।
और वो तख्ते ताउस पर जीनत अफरोज हो। और तुम्हारे बाबा जानी आगरा किले में कैद हैं और रफ्ता रफ्ता बीनाई खो रहे हैं रोशन आरा। उन्हें तख्त पर बैठकर भी तो कुछ दिखाई नहीं देता था, सवाए अपने बुलंद इकबाल और बादशाह बेगम के। ये आग उन्हीं की लगाई हुई तो है। उन्होंने हमेशा दारा को तरजीह दी, हर मर्तबा हर मौके पर उसकी इज्जत अफजाई की, इनाम और इकराम से नवाजा, उसकी शिकस्तों के भी जश्न मनाए और औरंगजेब की फतुहात पर मातम किया। उन्हें बार बार तंबीह की गई कि वो एक नाअहल और अय्याश शहजादे के हाथ में सल्तनत की बाग दौड़ ना दें, मगर उन्होंने एक ना सुनी। वो खुद जिम्मेदार है इस सूरत हाल के। कितनी संदिल हो तुम रोशन आरा, अपने बाप और भाई पर टूटने वाले मुजालिम पर खुशियां मना रही हो। हवस, हिरस, झूठ, रिश्वत, धोखाधड़ी से भी इख्तियार पाकर तुम्हारी हवस और हिर्स को सुकून नहीं मिला। और क्या चाहिए तुम्हें? दारा का सर? हाँ, मुझे दारा का सर चाहिए। सर चाहिए मुझे दारा का। एक जमाना था जब दूसरे तीसरे रोज 2-4 मुसाफिर रास्ता भूलकर इधर आ निकलते थे और सराय की सहूलतों से फैज़याब होते थे। मगर जब से इंसान ने जंगल से खौफ खाना शुरू कर दिया है और एक नगर से दूसरी नगर जाने के लिए महफूज रास्ते तलाश कर लिए हैं, हमारा कारोबार भी मंदा पड़ गया है। मगर मुकामे हैरत है कि आज तवील मुद्दत के बाद सराय में रौनक होगी। इब्ने बतूता, चल इधर आकर छुरियां तेज कर। खुशामदीद। माफ कीजिएगा, आपकी आमद के सिलसिले में इंतजामात में मसरूफ था। मेरी आमद के सिलसिले में? जी। तो क्या आपको मालूम था मैं आ रहा हूं आपके सराय में? यकीनन। मगर मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं था, मैं तो रास्ता भूल के। यहाँ सब रास्ता भूल कर ही आते हैं। बड़ी साफ सुथरी जगह है, जंगल के बीचों बीच। आप बैठ जाएं, ये आपका बिस्तर है। इब्ने बतूता, तेज हो गई। ज़िबा के लिए तेज छुरी होनी चाहिए। शिकार मिलता है यहाँ? यकीनन। कई हफ्ते हो गए गोश्त खाए हुए। शुक्रिया बरखुरदार। तुम्हारा नाम इब्ने बतूता कैसे? ये बेचारा बोल नहीं सकता, मुल्क गैर से है। सियाहत के शौक में इधर आ निकला था और फिर लौट ना सका। चल लड़के, जाकर तंदूर गरम कर। आप कुछ देर आराम कर लीजिए और लोग भी आ जाएं तो फिर खाना दिया जाएगा। तो क्या और लोग भी ठहरे हुए हैं यहाँ? बस आने ही वाले होंगे। तो क्या आपको इत्ला कर रखी है? हमें सब खबर होती है। लाल टीले के मोड़ पर लंगूरों ने ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया। नहीं, बस टांग पर जरा सी खराश आ गई। मगर आपको किसने बताया? लंगूरों ने। बहुत खतरनाक लंगूर थे, मेरी गठरी के पीछे थे। मगर मैंने भी ऐसा डंडा घुमाया कि याद रखेंगे, कहीं तो वहीं ढेर हो गए और बाकी दुमे दबाकर भाग गए। ये जगह तो महफूज है? हाँ, ये जगह महफूज है जियारत की वजह से।
जियारत? हाँ, यहाँ ऊपर बाबा सब्जपोश की जियारत है। उन्होंने पूरे 535 बरस चिल्ला काटा था। जंगल के सभी दरिंदे और परिंदे उनके मुरीद थे। दरिंदे और परिंदे भी? जी, जंगल पर कोई भी आफत आए, लंगूरों की लूट मार हो, या शेर की चीर फाड़, या हाथियों की यलगार, सभी रास्ता बदल लेते हैं। खबरदार, फेंक दो ये डंडा, वरना ये तीर तुम्हारे सीने के आर पार हो जाएगा। खबरदार, अगर ऐसी कोई हरकत की। कौन है ये? ये आप ही की तरह मुसाफिर है, रास्ता भूल कर इधर आ निकला। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं राह भूला मुसाफिर हूं? जी, हम तो कब से आप ही के इंतजार में थे। मेरे इंतजार में? जी, ये आपका बिस्तर लगा हुआ है और ये गर्मा गर्म कहवा भी तैयार है। आप तशरीफ रखिए, थक गए होंगे इतनी दूर से। क्या मतलब? तुम क्या जानो कि मैं कब से चल रहा हूं? हमें सब मालूम होता है, आप परेशान ना हो। ये सराय है ही भूले रास्ता भूलने वालों के लिए। मुसाफिर अगर रास्ता ना भूले तो हम भूखे मर जाएं। तो ये सराय है जंगल के बीचों बीच। बहुत अजीब बात है। बस जनाब, रोजगार तो खुदा ने सबको देना होता है। आबादी हो या वीराना, सबब बना ही देता है आप जैसे लोगों को। चलें, अब आप कुछ देर आराम कर लीजिए। इब्ने बतूता, मेहमान को कहवा दे। चल लड़के, जल्दी से खाना तैयार कर, तीसरा भी आता होगा। मैं जाकर देखता हूं कहां पहुंचा। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। बिस्तर तैयार है और खाना भी। खाना और बिस्तर? देखिए, मैं तो रास्ता भूला हूँ और जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचना है। कुछ देर आराम कर लीजिए, इतनी रात हो गई है, इतने अंधेरे में कहाँ जा सकते हैं। देखिए, मैं इंतजार नहीं कर सकता, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। आप बस मुझे सिमत बता दें कि इस सिमत में है दश्ते हैरत। कहवा तो पिए, बैठ जाएं, मैं आपको बता दूंगा। सच? मैं आपका एहसानमंद रहूंगा बुजुर्ग। ये तो हमारा फर्ज है। अब आप कुछ देर आराम कर लीजिए, सुबह होते ही सब इंतजामात हो जाएंगे। इब्ने बतूता, दिया तो जला, बहुत अंधेरा हो रहा है। क्या करता है लड़के, मांस खाने की ज्यादा जल्दी है क्या? कुछ देर आराम कर ले, थोड़ा सब्र कर, उसका वक्त भी आ जाएगा।